कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिबत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿਚਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਥੱਲੜੀ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਲ ਬਣਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੱਸ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਬੈਠੇ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। 2.5 ਕੁ ਗਿੱਠਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ
पता नहीं इसने बाहर परतना कि नहीं परतना, साडे शरीर की इन्नी की ही बुनियाद है। फिर असी कहने मर गया, पर गुरु साहब तो कहते कोई मरदा ही नहीं। पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया। कहते हवा हवा च रल गई तो जोत जोत में जाके रल गई। फिर भी कहिए गुरु अर्जन देव पातशाह नूं, महाराज असी कहने फलाने की मौत हो गई। महाराज कहते किहदी होई दसो? कहते कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ए तो चलत पया। कहते ब्रह्म ज्ञान रखन वालियां नूं मिल के पुछो तो सही कि किहदी मौत होई आ। वो कहणगे कोई नहीं मरिया, ये चल पिया। मैं थोड़ा जिहा विषय तो हट के बेनती करा। समुंदर दे विच हवा चलदी है, हवा उत्थों पानी नूं चक लैंदी है, वो पहाड़ां 'च उड़ा के लै जांदी, जाके उत्थे पानी आपस विच टकराउंदा, बदल टकराउंदे आ। वो हवा दा की बन गया? बदल बन गया। बदल पानी लैके गए, वो टकराए, उत्थे मींह वरना शुरू हो गया। असी की आख्या? मींह पै गया। अगे छोटा जिहा नाला बन गया, फिर क्या जी? नाला चल पिया। नाला जाके नदी 'च पै गया, असी की आख्या? नाला मर गया। पर नाला मरिया नहीं, वो तेनू नदी बनी नहीं दिख रही। नदी जाके दरिया 'च पै गई, कोई कहता नदी खत्म हो गई, खत्म नहीं होगी, वो दरिया बन गई। दरिया जाके समुंदर विच पै गया, तो फिर हवा ने दोबारा पानी चक लिया। एक एनर्जी रीसाइकल हो रही है। इत्थे मरदा नहीं कोई। गुरु साहब जी आखदे हन एक कर्मां के अनुसार एक रीसाइकल चलदा। एक दरखत का एग्जाम्पल लै लो। मान लो टाली का रुख है, एक चपटा जिहा बीज से आपां धरती 'च बीज दिता, उस बीज दा चपटा जिहा सहज सी, नाम सी बीज। तो जदों उहनूं जमीन 'च बीजिया, छोटा जिहा अंकुर निकलिया, नाम भी चेंज हो गया, बदली हो गया, शेप भी चेंज हो गई। क्या? अंकुर। थोड़ा जिहा होर वधिया तो कह दिता पौधा, नाम भी बदल गया, शेप भी बदल गई। फिर होर वड्डा हो गया, कहते दरखत। फिर उहदा नाम भी बदलिया तो शेप भी बदल गई। फिर उन्होंने उस तरह का चपटा जिहा फिर फल लग गया, फिर वो जमीन 'च डिग्या, फिर उहदे वर्गा उस तो पौधा फिर पैदा हो गया। जदों पेड़ खत्म होया, कोई कहे मर गया, कहते जेड़े अनेकों पौधे इस तो अगे चले वो तेनों नज़र नहीं आउंदे। बापू हरभजन सिंह अपनी सेवा करके तुर पे आ, पर अगां जिहड़ी उन्हां दी वंश है वो उन्हां दा ही ते अगे सतगुरु जी महाराज आखदे ओही ते वंश है ना। सतगुर कहंदे ओ सिसम नूं जो वड्डिया, वड्ड के कहंदे मोछे हो गए, मोछियां नूं वड्डिया फट्टे बन गए, फट्टे चराए दरवाजे बन गए। वो फिर एक दिन आके अपने तत्तां दे विच विलीन हो गए। सो सतगुरु जी आखदे आ कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं पुछया सी काबल तो आई संगत ने, महाराज माता पिता भैन भरा संसारी रिश्ते, इन्हां चों साडा असली रिश्ता कौन है, समझा दिओ। तो मेरे सतगुरु महाराज ने आख्या सी जैत सरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहां जग मीत। कहंदे कोई किसे नूं मित्र मन लैंदा जे, कोई कहंदा मेरा भरा ही है, मेरी माँ ही है, मेरा पिता है। सतगुरु जी आखदे कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै, ताकि निर्मल रीत। जिस ते कृपालू पिता कृपा कर देवे, वो इस निर्मल रीति नूं बुझ सकदा है। रहाओ वाली पंक्ति में सतगुरु जी आखदे हन मात पिता बंता, बंता इस्त्री नूं कहंदे आ, माता पिता आपां समझ ही रहे हैं। मात पिता बंता सुत, सुत पुत्र नूं कहंदे आ। बंधप जिन्हां नूं आपां संबंधी कहने आ। अर भाई ते साडे सके भरा। सतगुरु जी आखदे सारे कौन हन, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। कोई लंबा समा बिस्तर ते पै के चढ़ाई कर जे ना, ज़्यादा पैसा लगवा के, असी आम ही शब्द वरत दिंदे आ कि बजुर्गों ये पुराना लैना देना सी लैके चला गया। साडे बजुर्गों ने पुरातन कहावतां भी इस तरह बनाईयां सी जिस विचों सिੱਖੀ ਦਾ अपने आप ही प्रचार हो जाता हुंदा सी। आखना ऐरा गैरा न नथा खैरा, अजकल तो आप कह दिंदे ऐरा गैरा नथा खैरा, पर एक कहावत इस तरह सी ऐरा गैरा न नथा खैरा।
कि ऐरा गहरा कोई नत्था खैरा नहीं बन सकता। तुसी कहोगे ज्ञानी जी आए तो बजुर्गों की अंतिम अरदास की कथा करन, ये किहड़े पासे विशा लैके चल पे। पर मैं तुहानूं ये तां दस रहा कि इहदे विचों साडा सिख इतिहास झलकदा हुंदा सी। इहदा संबंध सी महताब सिंह मीरा कोटी दे नाल। उन्होंने पगवट भरा बनाया सी नत्थे खैरे नूं, ओहदी उदाहरण दिंदे हुंदे सी क्योंकि उन्होंने भाई महताब सिंह मीरा कोटी के पुत्र नूं बचाउण वास्ते अपना आप भी कुर्बान कर दिता, अपना भणेवा भी शहीद करा दिता, अपना पुत्र भी शहीद करा दिता, अपना नौकर भी शहीद करा दिता। इस करके बुजुर्ग आखते हुंदे सी ऐरा गहरा न नत्था खैरा, ऐरा गहरा नत्था खैरा नहीं बन सकता। तो अजकल कहते आ ऐरा गहरा नत्था खैरा। तो उदों बच्चे पुछदे सी बापू इहदा की मतलब आ। बापू कहंदा सी हुण टाइम नहीं आ, शाम नूं तुहानूं ये कहानी सुणावांगे। वो कहानियां दे रूप में सारा इतिहास बच्चों नाल साझा किया जाता हुंदा सी, जां एवें आख देना ना तू तिन्नां चों ना 13 चों। ते बच्चों ने पुछना दादा जी ये तिन्नां चों 13 चों की है, जां पिता नूं पुछना, पिता ने कहना मैनूं नहीं पता, अपने दादे नूं पुछ ली जाके, जां दादी नूं पुछ ली। अज तो किसी को दादे दादी को बहन का समा ही नहीं है, तो पुछूगा कौन तो दसूगा कौन। जदों उन्हां बह के पुछना तो बापू ने दसना 3 होए आ जेड़े गुरु तेग बहादुर साहब दे नाल चांदनी चौक विखे अपना आप कुर्बान कर गए। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी। 13 वो होए आ जेड़े ईसाई धर्म के मोढ़ी नूं पिठ विखा गए सी। इस करके उन्हें चंडीगढ़ में 13 सैक्टर नहीं बनाया। तां आखदे आ निकम्मे जे बंदे नूं ना तू तिन्नां चों ना 13 चों, ना गुरु नाल चलण वालियां चों, ना गुरु नूं बधावा देण वालियां चों, तू ते किसी पासे जोगा भी नहीं रहा। इस तरह ये कहावतां बणियां हुंदियां सी। इन्हां कहावतां दे विचों साडा सिख इतिहास जिहड़ा वो झलक के सामने आ जाया करदा सी। सो गुरमुख प्यारिओ, सानू जरूरत है अज इस विषय नाल जुड़न दी। बाबा कबीर साहब दे घर ना कोई मिलण आए तो उन्हां कहा कबीर नूं मिलना। माता कहंदी ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ अंतिम संस्कार ते गए आ। कहंदा मैं तो जानदा नहीं, पहचानांगा किवें? कहंदे पहचान लोगे, उन्हां दे मत्थे 'च लाल रंग की लाइट जगदी होएगी। हुण वो भाई साहब चले गए, शमशान घाट नूं तुरे जांदे अर्थी चुकी हुई आ, जाप हुंदा जा रहा ते वेखिया सारियां दे मत्थियां 'च लाइट जगदी हुई है। हुण वो भाई साहब कहंदा किवें पछाणा? कहंदे संस्कार हो लैण दो, बाद च पुछ लांगे। संस्कार करके ज्यों ही वापस जेड़ा मुड़े ओदी बत्ती बुझ जाए। तो इक्को दे मत्थे च लाइट जगदी सी। उन्हें कहा यही कबीर जी हो सकते जिहदे मत्थे च लाइट जगदी है, भाव कि उन्हां नूं मुड़दियां भी मौत याद सी। सानू अर्थी चुक के तुरिया जांदियां नूं मौत याद हुंदी आ। जदों अर्थी चुक के तुरदे ना उदों हर एक दी अख नमन हुंदी आ, क्योंकि साडे अपने अपने परिवार दे जी गए उदों याद आउंदे आ। उस अर्थी विचों उन्हां दी याद आउंदी आ, हर एक दी अख नमन हुंदी आ। जिहड़ी थोड़ी जी जुड़ी रूह है उन्होंने उस अर्थी चों अपनी अर्थी याद आउंदी है कि इसे तरह कल नूं मैनूं भी चक्की जाना, इसे तरह मैं भी एक दिन चले जाना। पर ज्यों ही वापस परतदे आ उदों याद आ जाता मैं तो बंबी चलाउणी जाके, मैं तो फलाने कोल पैसे लैणे जाके, मैं तो इत्थे जाना। उदों वो जिहड़ी तार है टुट जाती है, पर वो तार बाबा कबीर साहब की उदों भी जुड़ी हुई सी। ये मैं तां जिक्र कर रहा, अज तुहाडी तार जुड़ी आ बापू जी की अंतिम अरदास। चाहे जे अज साडी एक त्रासदी है, मरग की कथा तो बड़ी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच जिन्ना मर्जी पुछ लईए सतगुरां नूं, सतगुर आखदे आ पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। पर असल विच साडा फर्ज बनदा आउण वाली पीढ़ी नूं आपां जागृत करिए। अज जिन्ने तुसीं बैठे हो मैनूं ये दसो इन्हां 'च 40 साल तो थल्ले दा कोई है? अज जिन्ने को बैठे आपां 40 साल तो थल्ले की उम्र का कोई नौजवान नज़र नहीं आ रहा। हो सकता बच्चियां विच बीबियां च कोई बीबी धी होवेगी, क्योंकि असीं समझदे हां बीबियां कोल काम नहीं, कोई बीबियां आके गुरुद्वारा साहब बह जाण। अज साडी त्रासदी आ, मैनूं तां ये कहना पै रहा अज तुहाडीआं लाइटां जगदियां, मैं कहां जगदी लाइट विच शायद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फीड हो जावे।
अज साडे पंजाब दी तरासदी है। एक दिन मैं पार गया सी ते एक पिंड वेख्या, कहंदे साडे पिंड च कोई जदों मर्द आउंदा ना उदों चबारियां ते चढ़ चढ़ के लोग वेखदे आ किहड़ा भागां वाला घर है जिथे कोई नौजवान आ रहा। कहंदे साडे पिंड च जां कोई बजुर्ग खुंडियां ना तुरन वाले आ ते जां बीबियां हन, जिन्ने बच्चे कोई कनेडा ते कोई अमेरिका ते कोई इटली ते कोई स्पेन ते कोई होर किते चले गए। साडा पिंड सारा खाली होया पिया। उदों वो पिंड खाली होया सी। अज इन्हां साडे पिंडां दी तरासदी है। आउण वाले समय च गुरमुखो साडियां अरथियां चुकण वास्ते चार चार मोढे नहीं लभणे जिहो जे हालात असीं पंजाब दे करने। एक घर च चोरी होई, मैं गया उत्थे 3 ਜਾਂ 4 मर्द मिले, वो भी आंढी गवांढी। तो माफ़ करना मैं किसी कम्यूनिटी नूं टारगेट नहीं कर रहा। उदन ही गुजरां दे विच चोरी हुई सी। जो थाणेदार साहब कहते ज्ञानी जी उधर ही चक्कर मार के ही चलोगे नाल, मैं कहा चलो। तो उत्थे मैनू 15 ਤੋਂ 18 नौजवान मिले अगे जांदियां। वो सारे नौजवान सी। साडे अज एक एक बच्चा साडे घर, असीं कहने आ ये नारा दिता सी सरकारां ने, हम दो हमारे दो, ये साडी बर्बादी का कारण बनेगा एक दिन वास्ते। गुरमुखो साडे माता पिता दे 5-5 बच्चे सी, असीं सारे ही प्रसादे छक के सौने आ। साडा एक एक बच्चा, असीं 4 किले पैली बेच दिंने आ। बच्चा कनेडा अमेरिका इत्थे चला गया, पैली भी गई, बच्चा भी गया, तो पिछे माँ बाप भी रुलते रह गए। सानू की लोड़ कमाउण दी, की लोड़ बच्चियां नू पालण दी, जे कल नू साडी किसी ने देख रेख नहीं करनी ते कादे वास्ते। हुण तुसीं कहोगे ज्ञानी जी इत्थे है कुछ नहीं, मैं अज मरग दे भोग ते तां ये गल कर रहा। अज साडियां सारियां दियां लाइटां जगदियां कि बापू हरभजन सिंह दा भोग पिया, साडे भी सारियां दे पैणे। अज साडा ध्यान सारियां दा इस पासे है। तुसीं कहोगे ना इत्थे सानू सरकारां ने पढ़ा दिता कि इत्थे है कुछ नहीं। और जे इत्थे कुछ नहीं हुंदा ना, महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच 1 रुपये के बराबर 13 डॉलर हुंदे सी। महाराजा रणजीत सिंह की पहली शर्त सी, मेरी फौज विच आओगे, भर्ती होवोगे, दाड़ा केस नहीं कटाओगे, पहली शर्त है तुहाडे वास्ते। अज तुहाडे घरां च पैदा होने वाले बच्चे दाड़ा केस कटाई जा रहे। किवें तुसीं कहोगे असीं सुखी बसांगे? तुहाडा गुरु ते कहंदा सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभे करतारा। दूजी शर्त सी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहंदे जेड़ा आएगा वो पंजाबी सिख के आएगा तां मेरी फौज विच भर्ती होएगा। और अज अंग्रेज़ां ने वही चीज़ अपना ली। वो कहंदे साडे देश आओ दिहाड़ियां करन ते साडी भाषा सीख के आओ। तो असीं समझते एलिट्स कोई बड़ी वड्डी डिग्री बड़े खुशी ना दसणगे 7.5 बैंड लै ले। वो दूजियां दी भाषा चों 7.5 बैंड लै ले, अपने किन्ने सहज पाठ कर ले गुरु ग्रंथ साहब दे, किन्नी क तू गुरबाणी पढ़ लेना, पंजाबी तैनू पढ़नी नहीं आउंदी, की फख्र महसूस करदा तू? अपनी माँ नू माँ नहीं कह सकदा, दूजियां दी माँ नू तू माँ कह के बड़ा फख्र महसूस कर रहा। हुण तुहानू मैं दसदा इत्थे की आ, जे इत्थे कुछ नहीं हुंदा ना तो एडे एडे वड्डे हाईवे इत्थों दी निकल के अगाह नू ना तुरदे। इत्थे सब कुछ है, उहां तो जाइए जो इहां ना होए। की नहीं इत्थे मैं तुहानू कहना ये अपने दिमाग चों डिलीट कर दो, इत्थे कुछ नहीं आ। मैं कहना 1 किला पैली वाला बंदा भुखा नहीं मर सकता। 1 किला पैली है ना, सानू कमाउणा नहीं आया क्योंकि साडा ध्यान बाहर नू हो गया। तुसीं ये दसो असीं 3 भरा सी, सारे नौकरियां करन डे आ, गां साडा एक एक बच्चा कि उहदे वास्ते वैकेंसियां खत्म हो गईयां। जिन्नी आर्मी च वैकेंसी सी अज भी उन्नी आ, जिन्नी पुलिस दी स्ट्रेंथ सी अज भी उन्नी आ, जिहड़े DC सी अज भी लगदे आ, जिहड़े तहसीलदार अज भी लगदे आ। पर दुख की गल है DC मिलेगा तुहानू गौरव यादव, DC बिहारी आके लग रहे आ। ये साडी त्रासदी तां है, असीं बच्चियां दे ये फीड कर दिता, पुत्र 12वीं कर तैनू कनेडा भेज देंगे। जे 12वीं पास नू तुहानू इत्थे किसी ने PN नहीं लाउणा ना, तो बाहर जाके इंजीनियर नहीं जे लाउणा, उत्थे जाके भी दिहाड़ियां करनियां ना।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਬਣਾਉਂਗੀ। ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਮੜੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਬਣਾऊँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜਾਦਵ DC ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ 12 ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੌਰਵ ਜਾਦਵ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ DC ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ DC ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਹ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਪੈਲੀ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਲੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੇਲਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੀਂ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਗੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਵੀਂ ਖੇਤ 'ਚੋਂ, ਆਗ ਸੁੱਟਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ 2 ਰੱਖ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ 2-3 ਟੇਬਲ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇਈ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾ। ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਫਸ ਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਫਸ ਜੀ। ਜੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਨ ਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਫਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ,
ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੰਸ ਰੂਪੀ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ, ਅਚਿੰਤੇ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਬਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਪਟ ਮਾਰੀ। ਬਾਜ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਜ ਸੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਾਜ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਖੇਲਾਂ ਸਭ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਲਣ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਵੀਂ ਜਲਦੀ। ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਬੱਚਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਲਣ ਡਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਾਂ ਜੂੜੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੰਧ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਨਰਕਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਾ? ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਵਤੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਮੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਰੂ ਮਰੇ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਲਾ ਕਾਸ਼ਵਾਰ। ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸ਼ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਜਦ ਮੂੰਹ ਮੇ ਲੱਗਾ। ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਮਦੂਤ ਹੀ ਆ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਘਰ ਟਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਟਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਦੀ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਿੱਖਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਫੜਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਐ ਸੇਬ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਚੂਹੇ ਦਾ? ਪਾੜ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਦੂਤ ਹੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਹਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁੱਤੇ ਹਨ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਾਂ। ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਆਏਗਾ, ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੱਟੜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ।
सतगुरु जी आखते कई जन्म कीट पतंग बनया, कई जन्म सूकर मिरगाज, कहते कई जन्म भूत प्रेत बनता। ये सारा कुछ गुरमुखो जूनिया है, पर इन्हां तो बचण का इको एक ही तरीका है। जिथे मेरे गुरु नानक बाबा जी का जपजी साहब चल गया, उत्थे कोई जादू, कोई टूणा, कोई धागा, कोई तबीत कदे नहीं जे चलना। पर असल विच की है, असी गुरु घर आउने हाँ, जो मंगना सी वो मंग के लैके नहीं जाते। हुण आ सामने मान लो करियाने की दुकान है, उन्हें भाई साहब ने लिखा करियाना स्टोर, तुसी जाके कहोगे 2 बोरे खाद दे या वो सोचेगा कि इनू समझ नहीं आ, और जहाँ कहेगा मेरे लिखण च फर्क है। इस तरह गुरु नानक ने लिखा, नानक के घर केवल नाम। इत्थे की मिलदा? नानक के घर केवल नाम। साडियां मातावां आखदियां हुंदियां सी उंगल फड़ के लैके जाना, तो पता की आखना, पुत नामदान मंगियो। अज असी बच्चों नूं की कहने आ? कोठी मंग ली, कार मंग ली, कनेडा का वीज़ा मंग ली। मैनूं तो कई बार बड़ी हैरानी आउंदी आ, जदों आउणगे ना, बाबा जी अरदास करियो PR हो जे। है कि उवें ही क्यों? हाँ बाबा जी अरदास करो देश निकाला मिल जे मेरे पुत नूं। भाई सच्चाई तो यही है ना, है तो देश निकाला ही है ना। बच्चा PR हो जे, देश निकाला हो जे, बच्चा उत्थे पक्का हो जे कि माँ तेरी खबरसार लैण वाला, माँ आऊगी बाबा जी लड्डू ले अरदास करो कर, बच्चा कनेडा PR हो गया, बस माँ तेरा हुण कोई पता सुर लैण वाला रहा नहीं, तू काहदियां अरदासां कराउंदी फिरदियां, रोटियां दो ते तैनूं इत्थे भी आके मिल जाणियां सी ना। नानक के घर केवल नाम, 5 मिनट समाप्ति है। नानक के घर केवल नाम। हुण इत्थे कल्ला नाम है, गुरु साहब कहंदे आ। हुण जिन्ने तुसीं आए, किसी ने मंगिया नामदान की दात? असीं पता की मंगिया? बाबा जी कृपा करो दुध पोती दात दे दिओ, बाबा जी लंबी आरजू दे दिओ, बाबा जी चंगी गड्डी दे दिओ, बाबा जी कनेडा का वीज़ा दे दिओ। महाराज कहंदे इत्थे ते केवल नाम है। हुण दूसरे पासे असीं की होर वस्तुआं कित्थों मंगीए? फिर गुरु अमरदास साहब आखदे हन, साचे साहिबां, बोलो भाई साचे साहिबां। हुणे आपां आनंद साहब च पढ़ना, आपां नूं इन्हां ते याद होना चाहिए ना, बोलिया करो हाज़री लग जे, साचे साहिबां क्या नाही कर दे रहे। तो वह भी शब्द गुरु अमरदास साहब का, जिथे कहते हैं नानक के घर केवल नाम। केवल का मैं तुहानूं अर्थ समझा दिया, केवल की आ। तुसीं एक चैक भर दिओ ना बैंक जाके, उहदे उत्ते लिख दिओ 5000 रुपीज़ ओनली, तो ओनली तो अगे लिख दो 200। पढ़े लिखे सज्जन वीर बैठे आ, वो चैक चलेगा अपना? नहीं चलेगा, रद्दी बन जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो जे पंजाबी च लिखना होएगा तो मैनूं लिखना पएगा 5000 रुपये केवल। तो जे मैं केवल तो बाद 200 लिख दूंगा तो चैक खत्म हो जाएगा। मेरे गुरु साहब ने इत्थे शब्द ओनली लिखिया, मिल साध संगत भज केवल नाम। ओनली परमात्मा का नाम। देखो तीसरे पातशाह कहंदे आ नानक के घर केवल नाम, ते पंजवें पातशाह उसे ते मोहर लाउंदे आ कि मिल साध संगत भज केवल नाम। हुण दूजे पासे आ जाओ, गुरु अमरदास साहब ये गल आख रहे आ कि साचे साहिबां क्या नहीं करते रह। हुण मैं एक पासे ते आखां कि इत्थे कल्ली खंड ही मिलदी आ, दूजे पासे मैं आखां कि किहड़ी वस्तु जिहड़ी इस घर च नहीं हैरानी नहीं आउंदी। पर उहदा कारण समझो जरा कि की है। कारण यह है, तुहाडे सामने हीरियां दी दुकान लगी आ, जवाहरात पए आ, एक पासे मठियाई पई आ, एक पासे वस्त्र पए आ, सारा कुछ फ्री आ। किहड़ी वस्तु चकांगे आपां? हीरे जवाहरात ही लवांगे ना। ਉਹਦਾ मतलब कि ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ के भावें मिठाई लै लो, भावें वस्त्र लै लो, जो मर्जी लै लो। तो सब तो कीमती वस्तु किहड़ी आ? जिहड़ा हुणे कीर्तनीया जथेदार ਉਹ कीर्तनी जथा होका दे रहा सी कि नाम ही सब तो उत्तम है, नाम ने ही नाल निभना। जिन्होंने गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा, जिह मात पिता सुत मीत ना पाई। हुण बापू जी दे नाल कोई है जिहड़ा सहाई हो सके? पर एक शक्ति है जिहड़ी तुसीं इत्थों बैठे बैठे बापू जी तक पहुँचा सकते जी। एक चीज़ है जिहड़ी बापू जी तक पहुँच सकती है, जिह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। उस रूह ना जिहड़ा तुसीं बापू जी दे नां ते एक जपजी साहब बैठ के कर दोगे ना, उहदा फल उस बापू दी रूह नूं जरूर सुकून मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज कह रहे, जिह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा
नाम तेरे संग सहाई। हे मन उत्थे जाके नाम तेरे नाल सहाई होएगा। नाम क्यों मंगना है? अमृत नाम निर्मोलक हीरा। गुरु का नाम जिहड़ा उहदा कोई मुल नहीं है, वो निर्मोलक हीरा है। ये किन्ने दसिया सानू? गुर दीनो मनतानी। मेरे गुरु ने सानू ये मंत्र दिता जी। ते की आख्या फिर गुरु ने? डिगे ना डोले। ये हीरा तुसी जप लो, ये डिगदा नहीं। जे मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। ये शरीर भी डिग पेगा तां भी हीरा तेरे नाल सहाई होएगा। डिगे ना डोले। दृढ़ कर रहे हो, वो दृढ़ता विच किन्ना कहा जांदा। वो फिर आखदा महापुरुष इस हीरे नूं धारण करन वाला कहंदे 10 दी 20 लाख भी फौज चढ़ के आ जाए, 20वीं सदी दे महान जरनैल कहंदे जिंदे नूं पकड़ के लिजा नहीं सकदी ते मरे ना संबंध कोई नहीं। मिट्टी आ जिथे मर्जी सुट दिओ। ते वो बचन दे बली ने पूरा करके विखाया ना। डिगे ना डोले दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। पूर्ण तौर ते तृप्त हो जाता जी। हुण गुरु नानक दे घरों जुगतियां दातां किवें मिलदियां? मेरे कोल इन्ना समा नहीं, समा खैर मेरे कोल तो है, संगत कोल समा नहीं हुंदा ज़्यादा। जे किते पिक्चर वेखण डे होईए ना ते लाइट चली जे तो कहना वेख के जानी, भावें अद्धा घंटा होर इंतजार कर लो। पर जिहड़ी सच्ची फिल्म चल रही होवे ना, उदों असीं कहना लै बाबे ने तो होर ही अद्धा घंटा लाता। परसों कहना मैं बोझी कथा कर रहा सी, जदों समाप्ति कीती ना कीर्तनी जथे तो बाद साडा टाइम सी, ते उत्थे एक होर कोई रूह सी निहंग सिंह। चलो मौज में आए, जदों कीर्तनी जथा अजे उठन लगा तो जाके पिछले पासे हथ जोड़ के खड़ गई। कई बार हुंदा ना मेरे वर्गे सिंह उवें बिना बुलावे भी जथा आ जाता। वो खड़ गए तो मैं इशारा किया कोई गल नहीं, मान है भाई, महापुरुष आ गए, बिठा दो कोई नहीं कुर्सी। वो बजुर्गों को बिठाता, उन्होंने पौना घंटा लगाता। वो टाइम साडा सी। असी जदों समाप्ति की उन्होंने मैं आख्या जी अरदास कर दो, कहते नहीं गल नहीं, भावें 10 मिनट लाओ। उस पिंड की संगत पहला बड़ा प्रेम करती, कहते 10 मिनट लाओ। जदों असी कथा की चलो करदे अद्धा घंटा, संगत ने कहता लगाओ बाबा जी 10 मिनट और लगा लो। वो बीबी एक बाहर आके मैनू कहती वीर मैं तुहानू मिलना सी। मैं दसो बीबी जी। कहते मैं सच दसा मैं की सोचा सी तेरे बारे। मैं आख्या दस भैणा की सोचा सी। कहती जदों तू वीर उठ के आया, मैं आख्या लै हुण इहदी कसर रह गई सी, हुण इह भी पूरी कर लिया आके। बाबियां ते वारी बधी आ। वो उठ के तुरिया। हुण उस बीबी नूं थोड़ी पता सी कि इस जथे नूं बुलाया सी ते इस कथावाचक नूं बुलाया सी, एक भाई नूं नहीं सी बुलाया, विच वो भी आ गया। उन्होंने थोड़ी इस कहानी का पता सी। वो कहते कि लै मैं सोचा सी वीर हुण इहदी कमी रह गई, हुण इह भी पूरी कर ले। पर कहते जदों तुसीं कथा करन लगे ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी च बैठा, कहते बाबा जी फिर बड़ा आनंद आया। फिर मैं रिकॉर्ड करन लग पई तुहाडा। फिर मैं क्या ज्ञानी जी का मैं नंबर लवांगी, पुछांगी इन्हों तुसीं कित्थों जे। तो मेरे कहण दा भाव यह आ कि सच की कथा सुनने का साडे कोल टाइम नहीं हुंदा। मैं तुहानूं छोटी जी उदाहरण दियां। जदों मैं इस पलटन च गया ना तो जाके मैं पुछया सिंघां नूं हर मैदान फतेह की है काका? पलटन का नारा सी, वो आखदे हुंदे सी हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। मैं क्या मतलब की? कहते पता नहीं। मैं क्या देग तेग फतेह की पता नहीं, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह की पता नहीं, हर मैदान की फतह पता नहीं, ना 3 चो ना 13 चो की कुछ नहीं पता। भाई बादशाह दरवेश की फिर क्या पता नहीं। हुण तो हद ही हो गई आ, 31 मुंडे नवे आए भर्ती हो के। मैं पुछया पुत्र 10 गुरु साहबान के नाम ही सुना दिओ, और उन्होंने 10 गुरु साहबान के नाम ही पता नहीं। ये दोषी मेरिया भैणां, तुसीं कहोगे बाबा जी भैणां नूं ही कहिंदे आ, क्योंकि मेरा गुरु कहिंदा गुरदेव माता गुरदेव पिता। जे गुरु नानक का पहला सिख ही कोरा होएगा तो गां कौन सिक्ख्या देगा? गुरु नानक पातशाह का पहला सिख कौन सी? बेबे बेबे नानकी जी। भैन नानकी भैनों तुसीं माण महसूस करया करो। जदों बच्चे सिੱਖੀ तो मुनकर हुंदे ना, तुसीं डंडा चक्या करो, क्योंकि तुसीं बाबे नानक का पहला सिख जे। जे तुसीं जागृत नहीं हो गईयां तो वो बच्चे जागृत किवें होणगे? जिन्ना चिर बच्चे दे केस तुहाडे हत्थ 'च है ना जूड़ा, जिधर नूं मर्जी मरोड़ लो मुड़ जाएगा। जदों तुहाडे हत्थों निकल गया ना तां फिर नहीं जे तुहाडे हत्थ विच उहने आउणा। इस करके जदों मैं ये हालात वेखे ना आर्मी दे विच प्योर पलटन में, फिर गुरु ने कृपा की, असीं शुरू किया एक एक विषय ते कथा करके सारी आर्मी च ऑनलाइन कथा की। हर मैदान फतेह की, देग तेग फतेह किया,
गुरु करो जुगतियाँ किवें मिलदियाँ, जपजी साहब की महानता की आ, बीबीओ सुनियो जाके जरूर। यूट्यूब ते जाओ बलराज सिंह खालसा ते सर्च करो बलराज सिंह खालसा, ये सारे विषय तुहाडे अगे आ जाने। गुरु नानक पातशाह कहंदे है सब कुछ है। संसे मस्कीन जी आखदे सी, एक साडा मित्र सी, ओदी जेब च पए नोटां नूं अग लग जाया करदी सी। संसे मस्कीन जी कोई नॉर्मल हस्ती ते नहीं है ना। कहंदे कशहरा पाया तार ते उन्होंने अग लग जाती सी। ते कल असीं गए यात्रा ते बाबा फौजा सिंह, वेखो गुरु किवें बिद बनाउंदा। कुदरती फोन किया बाबा फौजा सिंह बार बार कहंदे सी, मेरी पलटन चों रिटायरमेंट सी, ज्ञानी जी कदी आयो आपां रगड़ा लगावांगे सरदाई दा। उन्हां दी भतीजी दे विआह ते असीं कथा लई गए सी, सारा परिवार उन्हां दा अमेरिका कनेडा, पर सिੱਖੀ इन्नी संभाली हुई उन्होंने, मैं हैरान हो गया। सारे दमालियां वाले सी, सारे जमीन दे नाल जुड़े हुए सन। ते असीं सोचा भाई साहब दा हाल पुछीए, फोन किया, कहते आ जाओ ज्ञानी जी। जदों गए उन्होंने गृह विखे, उन्होंने सानूं पग्गां विखाइयां कढ़ के, जिहड़ी पग कढ़ण उन्होंने अग लगी, विचकारों सड़ियां सारियां पग्गां। तुसीं कहोगे ज्ञानी जी किहो जी गल कर रहे। मेरा गुरु कह रहा पशु प्रेत मुगध को तारे, गुरबाणी पशुआं नूं प्रेतां नूं मूर्खां नूं तारदी है। जे ये चीज़ां नहीं हुंदियां ते गुरु ग्रंथ साहब कहंदे आ, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, कहंदे मरदे वक्त किते माया दा सिमरन कर जा मर जाओ। उदाहरण की दिंदियां हुंदियां माइयां, ये बड़ी माया माया करदा, ये की करेगा, ये सप बन के खजाने ते बहेगा। ये क्यों कित्थों आई उदाहरण? श्री गुरु ग्रंथ साहब चो आई। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। एहो जी चिंता जे किते मर जाए ना, ते की कहंदे सर्प जोन वल वल अवतरै, वो बार बार सप दी जूनी च पैंदा जी। हुण वेख लो जिहड़ा कोई कहंदा भूत प्रेत नहीं हुंदे, फिर कहंदे अरे बाई गोबिंद नाम मत बीसरै, तेनू रब का नाम ना भुले, तेरे ते ये चीज़ां कदे असर नहीं करनगियां। फिर कहंदे अंत काल जो लड़कै सिमरै, मरदे वक्त कोई औलाद का सिमरन करदा मर जे, मेरी तो औलाद रह गई मैं जा रहा, ऐसी चिंता मैं जे मरै। ਇਹੋ जी चिंता च किते मर जे तो फिर पता की हुंदा, सब तो वध बच्चे हुंदे सूर दे, ते रब ओदी इच्छा पूरी करदा। सूकर जोन वल वल अवतरै, बार बार सूर की जून च पै के ना ओदी बच्चे पैदा करन दी लालसा जिहड़ी है वो पूरी करदा रब। अज कहंदा ना जज अंतम इच्छा की तेरी, जज ने कित्थों सिੱਖਿਆ? जज ने रब कोलों सिੱਖਿਆ। बंदे ने कित्थों सिੱਖਿਆ? बंदे ने रब की नकल की। रब ने दो पैरों ते बंदे नूं तोरिया, बंदे ने दो टायरां ते मोटरसाइकिल साइकिल तोड़ दिते। रब ने चार पैरों वाले जीव बनाए, इन्हें चार टायर ला के 4 व्हीकल बना दिता। रब ने अगे 2 अखां लाइयां, इन्हें 2 हैडलाइटां जड़ दित्तियां। रब ने आ साह लैण वास्ते नासकां लाइयां ते छाती च ट्यूबां पाइयां, ते बंदे ने अगे रेडिएटर फिट कर दिता। रब ने आ मस्तक की हड्डी बड़ी हार्ड लाई, इन्हें अगे बंपर गार्ड फिट कर दिता। पर बंदा रब के अगे इको ही जगह जाके फेल होया। जिन्हों रब ने बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ जोत धर के रख दी। मन तू जोत स्वरूप है, तू ਉਹਦੀ जोत का एक छोटा जिहा हिस्सा है। अपना मूल पछाण, अपने मुੱਢ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ कर। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ कि ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ मौत हो गई, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कहना कि ਬਾਪੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ मौत होई, पर गुरु साहब ਕਹਿੰਦੇ नहीं, मौत किहदी होई आ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ फलाना ਸਿੰਘ आ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ जोत अंदरों खिंचदा तो शरीर डिग्गा हुंदा ते आपां कहने फलाना सिंह सुत्ता। की कहने आ? फलाना सिंह की डैड बॉडी आ, फलाना सिंह का मृतक शरीर। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि फलाना सिंह कुछ होर सी, वो अंदर सी। वो कौन सी? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। वो तो ओदी जोत सी, वो चली गई, वो ही सी फलाना सिंह। ये शरीर फलाना सिंह नहीं सी, ये 5 तत्त सी, इन्हें 5 तत्तां दे विच हुण विलीन हो जाना। अंत काल जो इस्तरी सिमरै, जज ने पूछा ना तेरी अंतम इच्छा, रब ने भी पूछा तेरी अंतम इच्छा। अंत काल जो इस्तरी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। अंत काल काम वासना करके कोई जीवन साथी नूं सिमरदा मर जे,
कि मैं चलिया गया तो ये ब्याह करवा लेगी, ये ब्याह करवा लेगा, इहदा की होएगा। ते ऐसी चिंता मैं जे मरै वेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, मंदिर कहते घर नूं सिमरदा कोई मर जावे कि मेरी तो कोठी रह गई मैं जा रहा। ऐसी चिंता मैं जे मरै, एहो जी चिंता च किते मौत हो जावे, प्रेत जोन वल वल अवतरे। बीबियां कहंदियां ना ये बड़ा घर घर नाल मोह लाई रखदी आ, ये भूत ही बन के आएगी इत्थे। आखदियां ना बीबियां आपसे, नहीं तू भैणा आई नहीं, वो कहोगी घर की राखी वास्ते तू भूत ही बनेगी, घर घर करदी रहनी आ। गुरबाणी की कथा असीं अपनियां कहावतां चों कर जाया करते सी साडे बजुर्ग, पर अज ते फोनां चों ही फुरसत नहीं, अज किन्ने कहावतां की गल करनी है। अंत काल जो मंदिर सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। हुण आपां कहने भूत हुंदे नहीं, जे हुंदे नहीं तो क्यों कह रहे प्रेत की जूनी वल वल पएगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं। अंत काल जो नारायण सिमरै, मरदे समय किते कोई नारायण का परमात्मा का जाप करता होया मर जाए, ऐसी चिंता मैं जे मरै। अब बापू जी वाली कहावत आ गई जे देख लो। ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदत लोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वा कै रिजे बसै। कहंदे वो तो मुक्त हो ही जाता, वो परमात्मा दे हिरदे च वस जाता, जेड़ा अंत समय किवें मर जाए। अंत समय आखे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। हुण असीं कहांगे बड़ा ही सौखा, सारी जिंदगी पाप करी जाओ, अंत वेले वाहिगुरु कह दो, बस परमात्मा के हिरदे च वस जाओगे। पर यह काम बड़ा औखा जी। तुसीं कदी कोई शराबी मरदा वेख्या होना साडे बजुर्गां ने। शराबी पता की आखेगा। कल मैं एक रिश्तेदारी दे गया, वो कहंदे साडे दादे ने आख्या सी जदों मैं मरूंगा मेरे नाल शराब पा दिओ विच। कहंदे पाई सी फिर आपां शराब उहदे नाल। हुण अंत काल नारायण किवें सिमर लेगा। शराबी बंदा मरन समय पता की कहेगा, दो कि पैग दे दे मर ते हुण जाना ही आ। ते गुरु अर्जन देव साहब की आखदे हन, कहंदे अजा मल पापी जग जाणै, निमख माहे निस्तारा। एक बार अख चमकण जिन्ने समय तुसी बीज बीजिया होएगा ना कदे समा पैण ते उग पएगा। राजस्थान गए सी एक्सरसाइज वास्ते, बाजरे दे विच बड़ी मूंगफली उगी हुई। तो मैं उन्होंने कहा बाजरे च मूंगफली किवें बीजी आ। कहते जी पिछले साल का बीज सी वो एरका अपने आप उग पिया। जे बीज बीजिया होएगा ना जरूर समा पैण ते उग पएगा। जे बीज गुरमुखो बीजिया ही नहीं होएगा तो उस बीज ने उगना किवें। नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। सो जेड़े कहते ना कि इस घर विचों आ चीज़ नहीं मिलती। हुण मैं अंत में दस दियाँ कि जिन्हों ये छोटियां वस्तुआं चाहिए, दुध की दात, पुत की दात, गड्डी की दात, मझ की दात, उन्होंने गुरु अमरदास पातशाह कहते साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, घर तो तेरे सब किश है जिस देह सो पावे। वैसे असी कथा की हुई है जुगतियां गुरु नानक के घरों दातां किवें मिलदियां। औखी घड़ी की आ, समा कढ़ के जरूर सरवण करियो। बलराज सिंह खालसा यूट्यूब पर खोलियो कि गुरु नानक के घरों दातां किवें मिलदियां। गुरु नानक के घरों ये दात किवें मिलती आ कि जिहड़ा कोई बाहर कहंदे चलदा वो गुरु नानक के घरों ये दात भी मिलती आ। जिथे गुरु नानक का जपजी साहब चल गया उत्थे होर कोई धागा तवीत जादू टूना वो नहीं चलना। हुण तुसीं ये दातां लैणियां, इत्थों बाहर चले जाओ, लंगर की सेवा च लग जाओ, झाड़ू की सेवा च लग जाओ, जोड़ियां की सेवा च लग जाओ। गुरु नानक साहब कहते बड़ियां सस्तियां दातां जिहड़ियां तुसीं महंगियां मन्नी बैठे जे। सतगुरु अमरदास पातशाह ने 12 साल मोढे ते जल की गागर ढो के सेवा की, तो फिर सानू की आख्या सतगुर की सेवा सफल है। बोलिया करो भाई थोड़ा शब्द जापो जी। सतगुर की सेवा जे को करे
ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਉਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।